بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بر صغیر میں آرمینیائی باشندوں کی آمد بڑی پرانی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ کلکتہ میں آج بھی آرمینیائی چرچ آف ہولی ناصرت موجود ہے۔ آرمینیا سے مغلوں کے اس قدر گہرے تعلقات تھے کہ اکبر کی ایک بیوی بھی آرمینیائی تھی، جولیانا، جو کہ ایک ڈاکٹر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کی آرمینیائی بیوی مریم زمانی کی بہن تھی۔ لیڈی جولیانا نے آگرہ میں پہلا چرچ قائم کیا تھا، لیکن ہندو مورخین اسے ہندو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مریم زمانی ایک بحری جہاز کی مالک بھی تھیں۔ ان کا جہاز عازمین حج کو لے کر جایا کرتا تھا اور ان کا مریم محل فتح پور سیکری میں بھی تھا۔ کوئی راجپوت عورت کس طرح جہاز کی مالک بن سکتی ہے؟ یقیناً یہ صفت تو ایک آرمینیائی خاتون کی ہی ہو سکتی ہے۔ میرا نام گوہر جان ہے، میں نے کجلی گائی ہے۔ ہندوستان میں طوائف کلچر کو انگریزوں نے بھی بہت فروغ دیا، بلکہ انہوں نے اسے عوامی بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نام گوہر جان کا سامنے آتا ہے۔ گوہر جان اصل میں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اس زمانے میں گانے کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی گائیکا اور رقاصہ کیسے بنی؟ ایسے ہی بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دوسروں کو اس کے بارے میں مشورہ دیجئے۔ یہ وہی گوہر جان ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب الہ آباد گئیں اور جانکی بائی طوائف کے مکان پر ٹھہریں، جب گوہر جان رخصت ہونے لگی تو اپنی میزبان سے کہا، میرا دل خان بہادر سید اکبر الہ آبادی سے ملنے کو بہت چاہتا ہے۔ جانکی بائی نے کہا کہ آج میں وقت مقرر کر لوں گی، کل چلیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں اکبر الہ آبادی کے ہاں پہنچیں۔ جانکی بائی نے تعارف کرایا اور کہا، یہ کلکتہ کی مشہور و معروف مغنیہ گوہر جان ہیں۔ آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، لہذا ان کو آپ سے ملانے لائی ہوں۔ اکبر نے کہا، زہ نصیب، ورنہ میں نہ نبی ہوں، نہ امام، نہ غوث، نہ قطب، اور نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں۔ پہلے جج تھا، اب ریٹائر ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں۔ حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں۔ خیر، ایک شعر بطور یادگار لکھے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر الہ آبادی نے یہ شعر سنایا، خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ اکبر کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ نہایت بذلہ سنج اور حاضر جواب تھے۔ محفل پر ایک سناٹا چھا گیا۔ گوہر بڑے ادب سے اسٹیج پر آئیں اور جہاں سے آغاز کیا تو اکبر دم بخود رہ گئے۔ گوہر نے برجستہ کہا، یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر، ہاں پسند اس کو نہیں ایک بھی اکبر کے سوا۔ یوں گوہر جان نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار بھی کر دیا۔ آج ذکر کریں گے گوہر جان کا، جو کہ آرمینیائی نژاد گلوکارہ تھیں۔ ہندوستان میں پہلا گراموفون ریکارڈ گوہر جان نے تیار کروایا تھا۔ وہ کلاسیکل سنگر تھیں۔ انہوں نے خیال میں راگ جوگی گایا تھا۔ یہ ریکارڈنگ 8 نومبر 1902 کو ہوئی تھی۔ گوہر جان کا اصل نام ایلین اینجلینا یوارڈ تھا۔ وہ 26 جون 1873 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد رابرٹ ولیم یوارڈ ایک ڈرائی آئس فیکٹری میں انجینئر تھے۔ وہ آرمینیائی تھے، جبکہ گوہر جان کی ماں ایڈلین وکٹوریا ہیمنگس تھیں۔ یہ ایک برطانوی فوجی ہارڈی ہیمنگس کی بیٹی تھی، جس نے ایک مقامی ہندو عورت رکمنی سے شادی کی تھی۔ رکمنی الہ آباد کی تھی اور اس کی بہن کا نام ویلا تھا۔ وکٹوریا موسیقی اور رقص میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے 1872 میں رابرٹ ولیم یوارڈ سے شادی کی۔ ان دونوں کی شادی کے نتیجے میں ایلین اینجلینا پیدا ہوئی۔ 1889 یعنی 1879 میں یہ شادی ختم ہو گئی۔ ماں اور بیٹی دونوں پر سختی آ گئی۔ دونوں بنارس منتقل ہو گئیں اور ایک مسلمان خورشید کے ساتھ رشتہ قائم ہوا۔
विक्टोरिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और एंजेलिना का नाम गौहर जान रखा गया और विक्टोरिया का नाम मलका जान रखा गया। विक्टोरिया जो अब मलका जान बन चुकी थी, एक गुलूकारा और रक्कासा के तौर पर मकबूल होने लगी। वो बनारस की तवाइफ कहलाने लगी। तवाइफ मुग़ल ज़माने में और अंग्रेज़ों के दौर में भी एक इंतहाई कामयाब दरबारी गुलूकारा, रक्कासा और शायर होती थी। उनका माशरे में एक वक़ार था, लेकिन ब्रिटिश राज में उनको जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। बहरहाल मलका जान और गौहर जान बनारस की मशहूर तवाइफ बन गई। मलका ने अपने आप को बड़ी मलका कहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त की तवाइफों में 3 मलकाएं मशहूर थीं। उन सब का नाम मलका जान था। मलका जान आगरे वाली, मलका जान ऑफ मुल्क पुखराज, मलका जान चुलबुली। विक्टोरिया इनमें सबसे बड़ी थी, इसलिए उसने अपना नाम बड़ी मलका जान रखा। मलका जान 1883 में कलकत्ता मुंतकिल हो गई और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में अपनी जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई। नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में मोटिया बुर्ज में रहते थे, जिसे आजकल गार्डन रिज कहा जाता है। उन्होंने 3 साल के अंदर 24 चितपुर रोड, जो अब राबिंदर सराय के नाम से मशहूर है, वहाँ 40,000 रुपये में एक इमारत खरीद ली और उस इमारत में गौहर जान की तरबियत शुरू हुई। गौहर जान ने क्लासिकी मौसीकी की तालीम काले खां ऑफ पटियाला से हासिल की, जिनको उर्फ आम में कालू उस्ताद कहा जाता था। इसके अलावा उस्ताद अली बख्श जरनैल, जो पटियाला घराने के बानियों में से हैं, उनसे रक़्स सीखने के लिए उसने बृंदादीन महाराज, जो कि बिरजू महाराज के चचा दादा थे, से कथक और सरिजन बाई से धरपद धामर सीखा और चरणदास से बंगाली कीर्तन सीखा और हमदम के तखल्लुस से उसने शायरी भी शुरू कर दी। गौहर जान राबिंद्रा संगीत में माहिर हो गई। गौहर जान ने 1888 में दरभंगा राज के दरबार में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और बनारस में एक पेशावर रक्कासा से रक़्स व मौसीकी की मुकम्मल तालीम हासिल की। दरभंगा की दरबारी मौसीकार मुकर्रर हुई। गौहर जान ने 1896 में कलकत्ता में परफॉर्म करना शुरू किया। उन्हें बरसगीर के रिकॉर्ड में पहली डांसिंग गर्ल कहा गया। गुजराती पारसी थिएटर के आर्टिस्ट अमृत किशु से भी उनके ताल्लुकात 1904 और 1905 के करीब रहे थे, लेकिन 1907 में अचानक किशु की वफ़ात हो गई और गौहर जान के लिए ये एक सदमा ही रहा। गौहर जान ने 1910 में मद्रास का दौरा किया और विक्टोरिया पब्लिक हॉल में गाना भी गाया। गौहर जान उस ज़माने की बहुत ही पॉपुलर खातून थी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में उनकी तस्वीर बिका करती थी। ऑस्ट्रिया और स्वीडन में तो माचिसों के डिब्बियों पर उनकी तस्वीर हुआ करती थी। सिगरेट कार्ड के ऊपर भी उनकी तस्वीर छपा करती थी। यहाँ हम आपको एक दिलचस्प चीज़ बताएं कि उस ज़माने में सिगरेट सिर्फ कागज़ के थैलों में दिया करते थे, जिसे जेब में रखने के बाद सिगरेट उसमें टूट जाया करते थे। सिगरेट न टूटे तो उसके लिए कागज़ के थैले में 2 कार्ड रख दिए जाते थे, जो दरअसल ताश के पत्ते हुआ करते थे। लोग ताश के पत्ते मुकम्मल करने के लिए सिगरेट की खरीदारी करते और उस पर गौहर जान की तस्वीर हुआ करती थी। दिसंबर 1911 में उसे किंग जॉर्ज पंजुम के दिल्ली दरबार में बुलाया गया। वहाँ गौहर जान ने जानकी बाई इलाहाबादी के साथ ये 2 गाना गाया, यह है ताजपोशी का जलसा, मुबारक हो मुबारक हो। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में वो मैसूर मुंतकिल हो गईं, जहाँ महाराजा मैसूर कृष्णा राज वाडियार चहारुम ने उन्हें बुलाया था। 1 अगस्त 1928 को उसे महल की मौसीकार का ओहदा दिया गया, लेकिन वो 18 माह बाद 17 जनवरी 1923 को इंतकाल कर गईं। डिप्रेशन की वजह से उनकी सेहत बार बार ख़राब हो रही थी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 600 से ज़्यादा गाने गाए। ये गाने हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, फ्रेंच और इंग्लिश ज़ुबान में रिकॉर्ड कराए गए थे और हर गाने के आखिर में वो ये ज़रूर कहती थीं, मेरा नाम है गौहर जान। मेरा नाम गौहर जान है, मैंने कजरी गाई है। माई नेम इज़ गौहर जान। क्लासिकी मौसीकी में उसने ठुमरी, दादरा, कजरी, भजन, तराना वगैरह गाए। उसकी ठुमरी और राग भैरवी में बहुत मशहूर है। ग्रामोफोन कंपनी के जर्मन एजेंट फ्रेडरिक विलियम गैसरिक हिंदुस्तान आए और तलाश करते रहे कि उन्हें कोई ऐसी आवाज़ मिल जाए
जो इस ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के लिए मौजू हो। फ्रेडरिक को तो बहुत मुश्किलात पेश आईं। एक तरफ तो उसे कोई ढंग की आवाज़ नहीं मिल रही थी और दूसरे ये कि रिकॉर्ड सिर्फ 3 मिनट का तैयार करना था, क्योंकि उस ज़माने में रिकॉर्ड सिर्फ 3 मिनट के ही तैयार हुआ करते थे, जबकि क्लासिकी मौसीकी का आलाप ही 15-20 मिनट ले लेता था। हिंदुस्तान में रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आई तो हिंदुस्तान की 20 खवातीन ही थीं जिन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को कबूल किया, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। फ्रेडरिक को बहुत ही मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लोगों में ये तवहम था कि अंग्रेज़ी आलात पर रिकॉर्डिंग कराने से देवता नाराज़ हो जाएंगे और गाने वाले की आवाज़ देवता छीन लेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के नतीजे में मौसीकी को महल से बाहर आने का मौका मिला और गुलकार औरतों को नवाबों के इस्तेहसाल से भी निजात मिली। ऐसे में फ्रेडरिक की नज़र गौहर पे पड़ी। गौहर जान रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अपने गाने का मुआवजा 3000 रुपये वसूल किया। उस ज़माने में सोना 20 रुपये तोला था। आज के ज़माने के लिहाज से गौहर जान अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की पहली गुलकारा हैं जो फी गाना 1 करोड़ रुपए लेती थी। गौहर जान इतनी मालदार थी कि जब उसकी बिल्ली ने बच्चे दिए तो उसकी खुशी में उसने लोगों को 20,000 रुपये खर्च करके दावत दी, यानी आज के लिहाज से तकरीबन 9 करोड़ रुपए की दावत की बिल्ली के बच्चों की पैदाइश पर। कलकत्ते में 6 घोड़ों वाली बग्घी में घूमने की वजह से उस पर कई दिन तक 1000 रुपये जुर्माना किया गया, क्योंकि सिर्फ वायसराय प्रोटोकॉल की वजह से 6 घोड़ों वाली बग्घी में सफ़र कर सकते थे। गौहर जान की ज़िंदगी अजीबोगरीब थी। उनके वालिदैन की 1889 में अलहदगी हो गई। वो महज 6 साल की थीं। कैरियर के उरूज में गौहर जान को गाने के लिए नवाब अपनी खुसूसी ट्रेन भेजते थे। गौहर जान सोने चांदी के जो जेवरात एक बार पहन लेती थी उसे दोहराती नहीं थी। लेकिन ये भी अलमिया है कि जब वो मरी तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उनके रिश्तेदार उनकी सारी जायदाद उनसे लूट चुके थे। जिस वक्त गौहर जान का इंतकाल हुआ उस वक्त उनके गानों के 78,200 रिकॉर्ड मौजूद थे। जिस वक्त रिकॉर्डिंग कंपनी ने गौहर जान की लाइव परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग जारी की थी, उसके लेबल पर एक फरिश्ते की तस्वीर थी जो एक डेस्क पर बैठा हुआ नाली बना रहा है। सन 1900 की दहाई के अवाइल तक गौहर जान का शुमार हिंदुस्तान की सबसे कामयाब गुलकाराओं में होता था। वो उस वक्त एक सनसनी बन गई थी जब वो ग्रामोफोन के लिए अपने गानों को रिकॉर्ड कराने पर राजी हो गई। क्लासिकी गानों को 2 से 3 मिनट के गानों में समेट दिया और उनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगे। आज के ज़माने में लोगों के प्राइवेट जेट हुआ करते हैं। उस ज़माने में एक नवाब ने एक प्राइवेट ट्रेन भी उन्हें तोहफे में दी थी जो वो पूरे हिंदुस्तान में सफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। इंतकाल के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 56 साल थी और उसके पास उसकी कमाई हुई दौलत में से कुछ भी नहीं था।